की अपनी खूबसूरती है और ये दोनों रहेंगी और दोनों साथ में चलेंगे। जब हमें उत्सव चाहिए, फेस्टिवल चाहिए, तो हम सामुदायिक व्यूइंग करेंगे। जब हमें नितांत अकेले एक्सपीरियंस करना है तो अकेले करेंगे। जो पहले चॉइसेस एक थी अब वो दो हो गई हैं। इससे क्या होगा, ओटीटी के आने से जो मैंने महसूस किया बतौर अभिनेता की कहानियां बदली। अचानक जब ओटीटी हिंदुस्तान में नया नया आया था तो मैं शुरुआती अभिनेताओं में से हूँ। सेक्रेट गेम मिर्जापुर और क्रिमिनल जस्टिस हॉटस्टार पे, मैं लगभग सारे प्लेटफॉर्म पे हूँ। तो उस समय कई लोगों को लगता था कि अच्छा ये दूसरा टीवी आया है। कई एक्टर्स थोड़ा झिझकते थे कि अरे यार ये तो टीवी ही है। तो और बाद में महसूस हुआ कि नहीं, इसकी पहुंच बहुत बड़ी है और मुझे हिंदुस्तान के बाहर, हिंदुस्तान के अंदर ऐसी जगह पर ऑडियंस मिल जाती है, मुझे यकीन नहीं होता कि अच्छा यहाँ तक लोग देख लिए हैं। मेरा नाम कालीन भैया रख दिए हैं। हाँ, मुझे कई बार लगता है एयरपोर्ट पे वो बोर्डिंग पास कालीन भैया का नाम करना निकाल दें, मुझे बताना पड़ता है मैं पंकज हूँ। बिल्कुल सही। अभी हम कालीन भैया, सत्तू भैया सब पे आने वाले हैं। सोनाक्षी, your thoughts and the fact कि Dahad, which is your OTT debut, which we've just seen a look of, तो ये एक तो this OTT's place in your scheme of things, and why did it come so late? Honestly, I think for me it came at the perfect timing. I was at a point in my life where I was finding that very repetitive roles were being offered to me, and I wanted to do something very, very different, out of the box, something that nobody has probably imagined me like. And that's when it came to me, and it was on an OTT platform. And without seeing the platform on which it was, or when it wasn't a theatrical, I went for it because as an actor, it was so satisfying to me to be able to play that character. I think the content right now that is on OTT is so vast and so wide and so much happening. Honestly, there's only about 7 stories in the world. There's just many, many different ways to tell them, right? So over here, I feel like there is so much for everyone. And it's really, like Pankaj sir said, that it's really opened up doors, worldwide. For example, we're watching Spanish shows, we're watching Korean shows, they're watching Hindi shows, English shows. So, it's just really cut down a lot of barriers. So for me, that was really very exciting. Is that some special sound that we make whenever Sonakshi is going to speak? Was that a cue for me to stop speaking? Effect. Imtiaz, she said that it sort of widens the choice. Pankaj ji also said the same thing. As a filmmaker, again to the earlier point about OTT कहाँ पहुँच गया है आपके निगाह में, and आप She season 2 ला रहे हैं आप, June 17th is when it is going to come. As a filmmaker, is it about widening the choice, or is it about there being yet another platform for creativity? As a filmmaker, it widens the choice immensely. And I feel filmmakers should be the happiest about the advent of digital technology, about OTTs coming in, because you imagine stories of different durations. जो सबसे बड़ी उपलब्धि है OTT की वो ये है कि लंबाई है उसके अंदर, यानी कि कुछ ऐसी कहानियां होती हैं हम बहुत स्ट्रगल करते थे कि 2 घंटे में कैसे खत्म हो। अभी जो भी कहानियां मैं OTT में बना रहा हूँ वो सब उस वक्त कंसीव की गई थी जब OTT था नहीं हिंदुस्तान में। तो मैंने वो फिल्म मैं नहीं बना सका वो फिल्म्स, तो मैंने सोचा कि यार किसी और तरह से इस कहानी को तोड़ूंगा, मरोड़ूंगा, फिर जाकर के ये बनेगी, क्योंकि कैसे इसको 2 घंटे में फिट करूं। वो कहानियां अब सामने आ रही हैं। And so every story I feel has a natural length. You can always make it longer and shorter, but it shows. So with the advent of the OTT, I feel that I'm able to make all various kinds of film, not make my films artificial by giving a prescribed length. It's like आपने जैसे कहते हैं ना कि कब्र पहले बना दी, उसके हिसाब से मुर्दा ढूंढ रहे हैं कि This is not my original joke. This Kaifi Asmi had said.
Kaifi Azmi had said it, right? Yeah. So वैसे कि हम लिरिक्स जो करते हैं, पर उसका उल्टा भी तो सच हो सकता है ना इम्तियाज, जैसे अब बहुत प्रेशर हो जाता है अगर एक सीरीज अच्छी चल जाती है कि अब उसका सीजन 2 आएगा एक्सपेक्टेशंस के साथ। अब एक वक्त सिनेमा के साथ ये भी है कि आप 2.5 घंटा गए, आपने जम के एंजॉय किया, आपको बिगिनिंग इंटरवल क्लाइमैक्स तक की खुशी मिल गई, आप अपने परिवार के साथ बाहर आ गए। अब फिल्म मेकर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि अगर नेटफ्लिक्स को अब दोबारा से लेके जाना है सीजन 2 सीजन 3 इंटरनेशनली, तो ऐसा नहीं है कि कोई कहानी जो नहीं खींचनी चाहिए वो खींच भी जाती है इस चक्कर में। हाँ, मगर उसके बाद फिर वो सर्वाइव नहीं करते हैं। अगर किसी ने खींचा, उतनी तो जजमेंट होनी चाहिए किसी भी मेकर को कि अगर मेरे पास कुछ कहने का है नहीं है तो मैं ना कहूँ, नहीं बनाऊँ दूसरा सीजन। आई फील और सो द अदर थिंग इज, एंड दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आई एम ओल्ड इनफ टू रिमेंबर द एडवेंट ऑफ टेलीविजन। जब टीवी आया था तो लोग कह रहे थे कि अब सिनेमा हॉल में जाकर के कोई सिनेमा क्यों देखेगा, अब तो मुफ्त में लोग टीवी देख रहे हैं। बट व्हाट इट डिड इज दैट इट सेपरेटेड द स्टोरीज between television and cinema. Certain stories that were being made in cinema before, like the social film so to speak, came onto television. So cinema defined itself. और भी सिनेमा हॉल्स बने, सिनेमा और बड़ा हुआ और थोड़ा सा डिस्टिंक्ट हो गया। द गुड थिंग अबाउट एन OTT इज दैट जिस तरह से सिनेमा में कहते हैं ना कि लेगेसी वैल्यू है कि आप आज देख सकते हैं शोले 10 साल बाद भी देख सकते हैं, उसी तरह से OTT में भी जो भी चीज आप बनाते हैं आपको ये सेटिस्फैक्शन होता है कि ये जिंदगी भर किसी भी समय हमारी जिंदगी के बाद भी देखी जा सकती है, तो अच्छा ही बनाना। You take that, you know that it's a good place to put your gold. In a way, so that's another very big advantage which we did not enjoy on television. वहाँ कहा जाता था कि ये तो मतलब एक शो का खेला है, इतनी मेहनत मत करो। अखबार है, अखबार रोज छपता है, रोज बिकता है। अखबार की पहले ही बहुत सेंसिटिव इशू है आजकल अखबार, और अखबार वालों के सामने हमारा अखबार आजकल डिजिटल में जाता है, फिर रहता है, और फिर अगर गाली पढ़नी होती है तो वो 10 साल बाद भी पढ़ जाता है। 10 साल बाद भी मिल जाता है। पहले शुरुआत में करते थे ना तो डेली सोप बोलते थे, डेली सोप, रोज साबुन लगाओ और झाग बन गया वहां फ्रीज कर दो, कल वापस पानी गिरा दो डीप फ्रीज। एक टर्म होता है ना, मैं अपमान नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे क्या पता कौन किस बात को गंभीरता में ले आ। पंकज, ये जैसे मैंने सोनाक्षी से पूछा कि वो OTT में देर से क्यों आई, अब इतने साल बाद उन्होंने डिसाइड किया। अगर इसी को मैं ऐसे पूछूं कि OTT आपके पास देर से, इन द सेंस जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में मैं आपको वापस ले जाती हूँ, अगर उस वक्त OTT जैसी कोई ऑप्शंस होती तो क्या आपको लगता है कि आप ऑलरेडी अपने करियर की इतनी ऊंचाई पे पहुंच गए, लेकिन क्या आपको लगता है कि लाइफ और डिफरेंट होती अगर उस वक्त OTT टाइप की अपॉर्चुनिटी होती? लाइफ डिफिकल्ट होती नहीं, डिफरेंट होती। हाँ, बिल्कुल डिफरेंट होती। फिर मुझे 47 साल तक घूमना नहीं पड़ता, फिर मैं बहुत पहले ऐसे कार्यक्रम में प्रवचन दे रहा होता। हाँ, ऑफकोर्स, क्योंकि मैम क्या हुआ OTT के आने से, आप देखिए ना, पिछले दिनों मैंने अभी पंचायत देखी नहीं है, पर एक जर्नलिस्ट मित्र आए थे और बताया कि सुनीता राजवार है उसमें, दुर्गेश कुमार है, अशोक पाठक है, तो क्या नाम है मेरा दोस्त है, बोल रहा हूँ, फरीद। तो OTT की खासियत है, चूंकि सर ने बोला समय है 8 घंटे, 8 एपिसोड है, तो सब प्लॉट में भी और सब कैरेक्टर्स में भी राइटर इन्वेस्ट होते हैं, उनकी दुनिया दिखती है, तो अचानक आपको 1-2 एपिसोड का किरदार याद रहेगा क्योंकि उस पे 10 सीन गए हैं। तो OTT अगर पहले होता तो शायद मतलब मेरी दुकान पहले खुल गई होती और तक शोरूम बन जाती। आपने शोरूम बना लिया वैसे जितने भी वक्त में, लेकिन शोरूम से भी काफी बड़ा शोरूम बन गया। तो क्या स्ट्रगल जो लोग करते हैं उनके लिए थोड़ी जिंदगी आसान हो गई है, क्योंकि अब, और पर्टिकुलरली बिकॉज सिनेमा के साथ क्या था, एक तो कम बैंडविड्थ ही कम है लोगों को ले पाने का, प्लस और ये मैं आपसे भी पूछूंगी सोनाक्षी कि ये बहुत डिफाइंड पैरामीटर्स होते थे कि आपको एक सर्टन तरह का दिखना है, आपको एक ये हाइट, ये ग्रूमिंग, आपको डांसिंग आना चाहिए, आपको हॉर्स राइडिंग आना चाहिए।
अभी OTT ने जिंदगी उस सेंस में बदल दी कि वो तो क्या लोगों के लिए स्ट्रगल जो है एज एन आर्टिस्ट कम हुई? जी जी जी, बहुत बिल्कुल कम हुआ है। यहाँ की प्राथमिकता एक्टिंग आनी चाहिए उतनी ही है, मतलब और ये हुआ है। मैं देखता हूँ, चूंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो सब व्यस्त हैं। आप अच्छे एक्ट्रेस अभी बॉम्बे में ढूंढने जाओ तो पता चला नहीं वो तो शूट कर रहे हैं, तो कोई किसी और में है। पहले सिनेमा में तो हीरो हीरोइन विलेन और एक पुलिस इंस्पेक्टर, यू आर अंडर अरेस्ट। अब तो यहाँ कई इंस्पेक्टर है और इंस्पेक्टर का रोल भी लिखा जा रहा है। तो सारे अच्छे अभिनेताओं के पास, मतलब अब उनको ऐसा भी नहीं है कि पहले ठीक ठाक चल रहा है, व्यस्त है, काम मिल रहा है। ये अच्छा हुआ OTT से। इंस्पेक्टर का ही रोल कर रही है सोनाक्षी अपने, जितना सा हमें पता चला है। और इनफैक्ट इम्तियाज की सीरीज भी कॉप ड्रामा, which is also an interesting aspect. But Sonakshi, पहले I want to know from a woman actor's point of view, क्या OTT में आना थोड़ा सा easy हो गया है लोगों के लिए दिखना and notice होना? थोड़ा सा नहीं, बहुत ही ज़्यादा। आई थिंक इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज खुल गई है लोगों के लिए, नो मैटर यू नो योर न्यू, आप इस्टेब्लिश्ड हो या फिर आपने यू नो एब्सोल्युटली कुछ भी नहीं किया हो, बहुत दरवाजे खुल चुके हैं। एंड आई थिंक दैट्स अमेजिंग, क्योंकि यहाँ पर व्हाट वी आर सीइंग बेस्ड ऑन द लास्ट फ्यू इयर्स इज दैट टैलेंट इज पैरामाउंट। यू कैन कम फ्रॉम एनीवेयर and become something, and that is such a beautiful thing to happen, you know. And also particularly as I said from a woman actor's perspective, पहले कितना स्ट्रेस रहता था कि एक ही वुमेन ओरिएंटेड फिल्म बन जाए तो वो मतलब 1-1.5 साल तो इसी बारे में बात होती रहती थी मीडिया में कि ये यू नो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है हीरोइन का। अभी थोड़ा स्ट्रेस नहीं है बिकॉज सो मेनी आर हेडलाइन्ड बाय वुमेन इंक्लूडिंग योर्स। स्ट्रेस तो नहीं है, बहुत खुशी है। लाइक आई सेड, आई थिंक ऑब्वियसली थिएट्रिकल में जब आप एक हीरोइन सेंट्रिक फिल्म बनाने जाते हैं तो उसकी मैथमेटिक्स बहुत अलग होती है देन व्हेन यू मेकिंग अ हीरो सेंट्रिक फिल्म। ऑल लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव टू काइंड ऑफ fall into place for that one particular film to do well, which is why there have been so far and few that you know have surpassed a certain collection. On OTT वो restriction ही नहीं है हमें वहाँ पर। You're working with great artists, you're working with wonderful directors, और stress तो मतलब eliminate ही हो गया कि आपको ये सोचना नहीं है कि कितनी collection आएगी मेरी। आप बस अच्छा काम करने जा रहे हो वहाँ पर और अच्छा काम कर रहे हो, and that as an actor is so liberating. It frees you. ये so to this point कि सोचना नहीं है कितनी कलेक्शन थी। हम अभी पंकज पीछे बात ये कर रहे थे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, एंड अगेन वी हैव अ फिल्म मेकर हियर एंड वी हैव यू नो एक्टर्स, बोथ मे हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। बिकॉज मुझे ये जानना है कि फिल्म मेकर्स को OTT में भी उतना ही स्ट्रेस रहता है या नहीं, और कलेक्शंस कैसे जज होती है। आप बॉक्स ऑफिस में तो आप कहते हैं 100 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़ की फिल्म पब्लिक का मतलब बच्चा तक जानता है। OTT में मीडिया ने लिखा तो हिट है, नहीं लिखा मतलब कैसे मेजर होता है। तो फ्रॉम एन एक्टर्स पर्सपेक्टिव आप ये बॉक्स ऑफिस के स्ट्रेस को कैसे देखते हैं OTT में? मैं तो स्ट्रेस लेता ही नहीं। हमारे हाथ में अभिनय करना है, वो हम ठीक कर सकते हैं। कमाई कितनी होगी वो हमारे हाथ में है नहीं। नंबर 2, मैं जैसे बता रहा था, हमारे मोहल्ले में एक केमिस्ट है, दवा की दुकान है, वो भी मैं जाता हूँ तो बोलते भैया ये तो 100 करोड़ कमा ली। मैं बोला आपको कितना मिल रहा है इसमें से? हाँ आपको, तो ऐसा हो गया। वो नहीं होना चाहिए। आर्ट में कभी भी जरूरी नहीं है कि जो बहुत कमा ले वो बहुत कमाल भी हो। तो पैसे से आर्ट का आकलन नहीं कर सकते हैं। तो OTT में वो भी एक सुविधा है कि यहाँ अच्छा हुआ तो वो वर्ड ऑफ माउथ पता चल जाता है लोगों के रिएक्शन से कि यार लोग इसको पसंद कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। चूंकि बतौर एक्टर हमें तो डाटा पता नहीं है कितने लोगों ने देखा, क्या देखा, बट सुनते हैं कि प्लेटफॉर्म वालों को सब मालूम होता है कि किस एपिसोड में किस सीन को कितने लोगों ने रिपीट करके दोबारा देखा। ऐसा सुना होगा। या फिर बंद कर दिया। यहाँ ऑडियंस में बहुत प्लेटफॉर्म वाले लोग हैं जिनको अंदर तक सब मैट्रिक्स पता है। लेकिन इम्तियाज ये एज अ फिल्म मेकर, एज अ प्रोड्यूसर, this whole equation vis-a-vis platforms,
कौन सा प्लेटफॉर्म लेगा, कितने में लेगा, हाउ वेल हैज इट डन, वो तो एनेक्डोटल नहीं रह जाती होगी बात. तो उसके मेट्रिक्स को एज अ फिल्म मेकर आप कैसे देखते हैं सक्सेस? Well, you have to, you go ahead and believe what the OTT says, what the platform says, and you know when a show is done well, when they ask for a second season, for instance, or they want to engage with that thought further. So आप उनसे पूछते हैं, वो आपको बताते हैं, जैसा कि पंकज जी ने कहा कि कौन से शोज ने क्या किया है. You have to choose to believe them. But the fact of the matter is that जितना transparent फिल्म का जो रिजल्ट होता है ना, और जितना वो एक्चुअली उतना ट्रांसपेरेंट होता नहीं है, बिकॉज उसमें बहुत सारी कैलकुलेशंस होती हैं जिसको एक ऐसी तरह से हेडलाइन करके न्यूज़ बनाई जा सकती है कि वो न्यूज़ जो है ना वो आपके केमिस्ट तक पहुंचेगी और बच्चे तक पहुंचेगी, और फिर उन लोगों में ये एक नैरेटिव सेट हो जाएगा कि इसने 175 करोड़ किया, उसमें से 175 करोड़ किसको मिले, केमिस्ट को तो नहीं मिले, मगर किसको मिले ये, और उसने क्या लगाया था इसको पाने के लिए, सो देयरफॉर उसके कितना मुनाफा हुआ या क्या हुआ, ये काफी बोरिंग और न्यूज आइटम बन जाता है. 100 करोड़ के पीछे की मैथ्स जानने के लिए भी आपको कुछ लोगों पे रिलाई करना पड़ता है. As a producer, obviously, I can find out how much that is, but it's difficult for the audience to find out. Similarly, as Pankaj is saying, that there is a matrix that is available to the digital platforms, and they can assess and tell you how much it is. But the important thing always is the reaction that you're not seeking. When you're not seeking to know how it has done, after a while you get to know exactly how each show or each film of yours has done. So I more go by that, as Pankaj said, that पता चल ही जाता है. हाँ, उसी तरह से फिल्मों का भी पता चल ही जाता था कि ये इस फिल्म ने अच्छा नहीं किया है, and so on and so forth. In terms of the genres, in terms of the topics, OTT क्या एक तरीके से थोड़ा सा स्टीरियोटाइप होने लगा है? जैसे हम अब यहाँ 3 लोग जो बैठे हैं, आप ही के अगर वर्क को एनालाइज करें तो कॉप ड्रामास, यू नो दैट क्राइम, स्मॉल टाउन, गैंगस्टर्स, ऐसा लग रहा है कि जो एक लार्जर देन लाइफ लव स्टोरी वगैरह के जॉनर के लिए OTT इज नॉट परहैप्स द, और इज इट? एंड राइट नाउ द पब्लिक इज टू एनग्रॉस्ड इन एक्सपेक्टिंग अ सिमिलर काइंड ऑफ अ थिंग. पंकज, आपको क्या लगता है, आपके पास ज़्यादा ऑफर्स जो आती है वो थोड़ा मिर्जापुर और सीक्रेट गेम्स के बाद एक तरह की आने लगी, या वैरायटी मिलती है? जी नहीं, मुझे लकीली अलग आए. मैं क्रिमिनल जस्टिस वो अलग ड्रामा है, वो क्राइम से संबंधित है, बट वो जुडिशियल सिस्टम के ऊपर है. तो आए तो शुरुआत में आए, मुझे कई लोगों ने भी मिर्जापुर करता हूँ, अब कितना गैंगस्टर बनूंगा, लेकिन ऐसा नहीं. मुझे लगता है कि प्लेटफॉर्म वाले भी, ऑडियंस वाले भी, बहुत ज़्यादा हम एक ही किस्म का क्राइम ड्रामा दिखाते रहेंगे तो लोग थोड़े दिन में बोर हो जाएंगे. बट सेम टाइम आप देखें, पंचायत मैं देखा नहीं हूँ, फिर भी आजकल चर्चे में इसलिए नाम आ रहा है, तो वो तो एक छोटे से गांव कस्बे की कहानी है, जो विलेज पॉलिटिक्स, पंचायत समिति. तो मुझे लगता है यहाँ प्रयोग ज़्यादा होंगे, एक्सपेरिमेंट कहानियों को लेके यहाँ आने वाले समय में मुझे लगता है ज़्यादा होंगे. In fact, talking to the global head of a streaming platform, who said that I don't know why there is that perception that OTT content is supposed to be global stories when all that we're looking for is very local storytelling from any part of the world, because they were looking at different countries but the local storytelling. Sonakshi, do you think that this also means that the nooks and corners of our country, and similarly, you know, Korean dramas have, so we've completely broken the language barrier so far as OTT is concerned, and I think so. We've opened up the world of entertainment to everyone, you know, no matter where you come from, where you are at this particular moment today. For all you know, somebody over here at the back could be watching a K-drama as we speak. So I think it's wonderful. You're learning about so many new places, so many new cultures. You're being exposed to a whole lot new cultures,
And I think that's amazing. And entertainment is such a thing that you can never get enough of it, right? Nobody's going to be like, "Ab bahut ho gaya, mujhe aur entertainment nahi chahiye." So the more the merrier, I feel. And I think the way that the barriers have been broken when it comes to language, when it comes to, countries and stuff, I think it's brilliant. Also in terms of the sensitive topic of censorship etc. OTT के पास इम्तियाज जब आप अब whether it comes to intimacy, whether it comes to crime, violence, whatever, कम सोचना पड़ता है as a filmmaker when you are sticking to a true story than maybe theatrical releases? मुझे बहुत खास फर्क नहीं लगता है honestly, because I feel that there are concerns that the OTT platforms also have. They have an SMP standard and practices department which come up with their points of view about the sensitivity that the audience might have to the content. And similar, like as a filmmaker, I don't like censorship. Ideally, if you ask me, censorship नहीं होना चाहिए ऐसा मैं कहूँगा, मगर मैं filmmaker हूँ, मैं कोई नेता या I'm not a political person to know exactly how the nation should run. But मगर OTT में बहुत ज़्यादा छूट है, आप कुछ भी कर सकते हो और कुछ भी दिखा सकते हो. I don't think is the situation that I am faced with, at least. I feel that one thing is to think that पास क्या हो जाएगा मेरी फिल्म में, and one thing is to think that popular क्या होगा. I feel that the second question is more important for me, because I feel that I shouldn't be saying or doing anything in my films which will take away a part of my audience or make them feel bad, offend them in some way. Before we go over to the audience for the questions, and please keep a couple of questions in your mind. पंकज, अगर आपके करियर की कोई ऐसे फिल्म, क्योंकि अब थिएटर वर्सेस OTT थोड़ा सा उस टॉपिक पे जा रहे हैं, ऐसी कोई फिल्म जो अब आपको जब डिजिटल आप कहते हैं फोन्स में है लोगों के और गांव-गांव तक पहुंचा हुआ, तो ऐसा कोई काम अपना ऐसा लगता है कि वो अगर उसको डिजिटल रिलीज मिली होती तो वो बेटर होता, एंड इन एन ऑपोजिट वे ऐसा कोई OTT का काम है जिसे आपको लगता है रेट्रोस्पेक्टिवली कि थिएट्रिकल रिलीज मिली होती तो शायद बढ़िया हो? एक हमारा टीवी शो था पाउडर, अतुल सबरवाल ने बनाई थी. वो मुझे लगा कि बहुत पहले 2010 में, मतलब वो नार्कोस के पहले हिंदुस्तान का वो ड्रग्स की कहानी थी. बहुत बढ़िया रिसर्च था उसका. मतलब उसमें पहली बार हम लोग ED, DRI, मैं भी नहीं जानता था उस वक्त कि ये सब क्या है संस्थाएं. बहुत वेल रिटन स्क्रिप्ट थी. वो मुझे लगता है अगर OTT के वक्त में, बाद में हालांकि वो आई, बट वो रीरन होने के 5-6 साल बाद आई. तो और गुड़गांव मुझे लगता है अगर वो डायरेक्ट OTT पे आती तो ज़्यादा लोग देखते. गुड़गांव में फिल्म जो अच्छी फिल्म थी, बट थिएट्रिकल में शोज ही नहीं मिले. 80 सिनेमा हॉल मिले थे, एक टाउन में और दूसरा विरार में, तो कौन देखने जाएगा. सोनाक्षी, जैसे लुटेरा, ये गॉट यू सो मच ऑफ एन अप्रिसिएशन. अब अगर आज OTT के थ्रू लोगों के फोन्स पे पहुंच जाता है कंटेंट, सिनेमा तो आ ही जाता है प्लेटफॉर्म्स पे, बट उस वक्त का जो टाइम था, डू यू थिंक इट वुड हैव मेड अ डिफरेंस? Yeah, definitely. I think there are a few films actually, जैसे कि नूर, जैसे कि खानदानी शफा खाना, जहाँ पर मैं प्रोटैगनिस्ट थी फिल्म की, which did not maybe do that well at the box office, but I know that would have probably been appreciated a whole lot more had they released on OTT. And yeah, there are definitely some theatrical releases which should never have been released at all. Period. Well, we're getting an applause for honest, for the truth answers. इम्तियाज जो कि लव स्टोरीज बना के इतने सक्सेसफुल और रॉक स्टार और आज कॉप ड्रामा एंड रेसी थ्रिलर, अगर OTT की वजह से ये वैरायटी आपको मिली, और अगेन द सेम क्वेश्चन, आपका कोई काम अगर OTT पे रिलीज हुआ होता तो वो क्या? Can't think of anything right now, but maybe like if I had to do my last film Love Aajkal on the OTT, then I could have written it longer.
बिकॉज मुझे लग रहा था उसमें बहुत ज़्यादा मसाला डाल रहा हूँ, बहुत जल्दी जल्दी बहुत सारी चीज़ें हो रही है, बिकॉज मुझे 2 घंटे में ख़त्म करना है. इफ़ आई could make it 3 hours or 3.5 hours, then it would have been a good film. So that's the thought I had when you were discussing that. उसके अलावा I can't remember anything. आपका एक शो जो आपने binge watch किया है, each of you on OTT, your own work or somebody else's, रुक ही नहीं पाए और पूरा का पूरा देख लिया. Patal Lok. I was hooked onto it. And of course, Stranger Things, which I've just finished season 4 of, and I'm lost. I don't know what to do with my life anymore. पंकज, नहीं, मैंने नहीं देखा. तो आप शोरूम बना रहे हैं, लोगों का काम नहीं. अब मैं वो हलवाई हूँ जो मिठाई बनाता है, खाता खुद नहीं है. मैं नहीं रिलीज होने को बहुत दिन बाद कभी कभी टुकड़ों में देख लेता हूँ. एक सीन आज देख लिया, एक सीन किसी और दिन. मुझसे बैठा नहीं जाता है बहुत ज्यादा देर तक. इम्तियाज, When I watch shows, I think after 2 episodes or so, I want to call it a night. I haven't really binged watched something and felt guilty about it the next morning. वो नहीं हुआ अभी तक मेरे साथ. okay, do we have a show of hands for, I can see Rishi. Yes. Imtiaz, sorry bhai, we spent a lot of time yesterday, but I didn't. This is too much. But I should have asked you this question yesterday, but I just thought of it. It's very simple. Risque content, yeah? Because you push the envelope with She, guys, all of you, She season 2 is about to come out. You have to watch it. It is this master craftsman at his best. Having said that, I'll pay you your money for this. Meet me outside. But you know, sometimes there are things that you can't tell on cinema because there is a certain risky element to it. Do you have that freedom now with OTT to be able to tell stories without having to worry about those sensibilities? Not so much, Rishi. Not as much as one would think, honestly. I feel that, for instance, I don't know, if I were making a film, it would be pretty much the same. I feel. It perhaps would be rated differently, not a universal film in that case, but I don't think I'd change it. Any other questions? Yeah. Can we? अच्छा, उस टेबल में रखा हुआ है माइक. Just come. So, I'm Soumya, and my question is for Sonakshi and Pankaj both. I'm a music writer, so I just try to draw a little bit of comparative of that. So, a lot of musicians these days, they feel really happy working on non-film music, independent music, as opposed to film music, because they get a certain sense of creative liberty. Now, Sonakshi, you're also a musician. So, I'm just trying to understand, is working in a web space like a creative liberty for artists as opposed to working in films? Because you just mentioned that you get certain kind of freedom and you don't have to worry about box office collections and all that. So just want to get your understanding on that. Firstly, I am not a musician. I would like to be a musician. There's a big difference. But I think there is a little bit more freedom, like I said. And because there's so much happening, so many different kinds of things being made, so many different genres being explored. As an actor, I think, for me at least, through personal experience, people are reimagining you in different roles, which used to not happen in the movies, so to speak. And for me, that is so liberating and so free, and it's just kind of, there's a newfound love for the work that I'm doing because I'm getting to do something new. So definitely, I'm loving it. आप जैसा चाहती हैं वैसा ही हो. Yes, please. I'm sorry, I have a question for Pankaj ji. जी. So why are you sorry?
सॉरी सॉरी क्या I'm not addressing the question to you, sir. I have to apologize, sir. How do you manage to stay so chill? That's one of your voice is always sharp. Like, I mean, that's one of the compliments. But my main question is, do you think this OTT, post the COVID situation, your OTT platform has brought some good actors who probably would have been lost if the COVID situation wouldn't have happened and the OTT platform didn't get it due? Do you think your career is a lot more active and a lot more visible because of this platform? Has it helped actually? If you had gone in the traditional mode of going through movies, the struggle would have been much more. Rather than doing it on OTT, which gave you that opening, it suddenly introduced you to a larger, wider audience in a very different way. Do you owe your career to the OTT platform? जी जी बिल्कुल, मैं जो बोलता आपने सब बोल दिया। तो आपके प्रश्न में ही एक उत्तर था और इसीलिए मैं शांत रहता हूँ कि जो मुझे कहना है वो ऑडियंस कहीं ना कहीं कह देती है। तो शुक्रिया, आपको बहुत सारा प्रेम। Same to you, lots of love to you. पंकज जी, यूट्यूब पे आपका बहुत अच्छा प्यारा प्रवचन लोग बहुत एंजॉय करते हैं पंकज जी। मैं बोल रहा था कि कोई सज्जन मुझे पूछ रहे थे कि यूट्यूब पे तुम्हारे बच्चे बहुत इंटरव्यू सुनते हैं तो कुछ मोटिवेशनल बातें कर दो। तो मैंने बोला ये न्यूटन का एक डायलॉग है कि सूरज न चाहते हुए भी प्रकाश दे ही देता है। मेरे ट्रेलर से ज्यादा मेरे इंटरव्यू चलते हैं। Okay, the last question to Gaurav. I saw Gaurav's hand. Oh, sorry, you already have the mic. Okay, then to Gaurav and we'll wind Am I audible? Yes. Oh, there's another one? Or is it me? Oh, Here, right at the back. how many mics have we circulated? I have no idea, not in charge of coordination. But Please my name is Kabir. My question is for Pankaj ji. Pankaj ji, आजकल ये नया दौर चल रहा है कि सीरियल किलर वाले जो डॉक्यूमेंट्रीज और सीरीज है वो बहुत चलते हैं। तो आपने तो गैंगस्टर, कालीन भैया, ये सब चीज बहुत प्ले कर दिया है। तो फ्यूचर में हम आपको कभी कोई अनोखे सीरियल किलर रोल में कभी देखेंगे क्या? ये तो आपने फंसा दिया। मेरे लिए बहुत मुश्किल है सीरियल किलर टाइप का रोल करना। मैं सपने में भी किलर का किरदार ना कर पाऊं, पता नहीं, लेकिन मुश्किल है मेरे लिए। मैं बहुत ब्रूटल किस्म का रोल असहज हो जाता हूं खुद, मुझे नींद नहीं आएगी। तो मैं उतनी परेशानी एक्टिंग के लिए नहीं लेना चाहता हूँ। समझ गया, थैंक यू। मगर पंकज जी, आपने वासीपुर में यहाँ इस तरफ थोड़ा दाईं तरफ देखिए। जब मैंने वासीपुर देखी थी, मैंने अनुराग से पूछा कि ये कौन शख्स है, बिकॉज मुझे लगा कि इससे बच के रहना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर की जो हार्डनेस थी उस इंसान की, और वो काफी मतलब डरावना था। हालांकि शायद वायलेंस के उतने सीन्स नहीं थे, बट जो कैरेक्टर आपने प्ले किया था, तो जैसे आपने उनको तो कह दिया कि आप नहीं कर पाएंगे, बट मुझे लगता है कि आप जरूर उस तरफ आपको जाना चाहिए। हाँ जी, शुक्रिया। और मुझे वो बात अनुराग ने बताई थी, आपने स्क्रीनिंग के बाद आपका फीडबैक मुझे बताया था। तो हाँ, हो सकता है, अभिनेता है तो हर किस्म का रोल करना चाहिए। तकलीफ जरूर होती होगी वहां जाते हुए, मगर जी जी जी, मुश्किल होता है। वही बोला, मैं उतनी परेशानी उठाना नहीं चाहता। तो अच्छे प्यारे लोगों के रोल आजकल मिल रहे हैं, ठीक है। कोल्ड ब्लडेड सीरियल किलर नहीं, पर कुछ कोल्ड ब्लडेड है, आपको पता नहीं है, पर आपको वो तो एक्टर है, कोल्ड ब्लड एक्टर है, तो कर ही सकते हैं। अच्छा पंकज जी, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। मुझे आपका, मैं क्या सभी को आपका अभिनय बहुत बहुत पसंद है। कोई ऐसा किरदार बताइए किसी और सीरीज में से OTT पर जो आपने नहीं किया, लेकिन आपसे अगर पूछा जाए कि क्या आप एक किरदार कौन सा करना चाहेंगे और चाहते कि आपने किया होता, एक नाम बताइए सीरीज का और किरदार का। जी थैंक यू, शुक्रिया सर प्रेम करने के लिए। आपको भी प्रेम स्क्वायर। मैं सच बताऊं तो मैंने कुछ देखा ही नहीं है दूसरों का कि मैं ये बता पाऊं कि मैं ये रोल करना चाहता था। तो ऐसी कोई विश लिस्ट नहीं है। जो नहीं हो सके पूर्ण काम, उनको करता हूं मैं प्रणाम। तो मेरे मलाल, मुझे ऐसा ड्रीम रोल कोई रोल नहीं है। जो रोल मिलता है उसी को ड्रीम रोल बना लेते हैं। Gaurav, you wanted to ask a question. We'll
wind up after yours. There you get a mic. Hi Sonakshi. Hi, Gaurav. And hi Imtiaz. Imtiaz, the question is for you. You know, we'd never imagined the power of OTT till a couple of years back. It was all cinema, and then OTT happened to us. So a little crystal ball gazing, do you see in a couple of years that there will be even OTT split into television and mobile in terms of content being, separate content being made for consumption on mobile and separate content for television via OTT? I think so. I think you're right. This might happen. I think what he's saying is that the separation of content according to the size of the screen will continue to happen. In a way, it is happening already. There are some people that want to, like the screen, when a filmmaker is making a film, if I'm making some content, I'll have to know what is the width of the screen, what is the dimension of the screen that it's going to be projected on. You know, I'm already thinking that. I'd be very happy to know that it's going to come on a small screen of a small device. So therefore, I will make my shots accordingly. Something that can be seen or understood easily on that medium. But yeah, it's a very intelligent question, and I think what you said is absolutely true. Also duration, Imtiaz, because yeah, you like get you said, fatigued. Yeah, And also the mobile, question of, start stopping is easy or difficult. If you're on a bus, अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं, आपको लगता है कि शायद 5 मिनट, शायद 7 मिनट लगेंगे, तो आपने ऑन कर लिया, इसका इंतजार नहीं किया कि जब आधा घंटा होगा तभी आप स्टार्ट टू फिनिश देखेंगे. वो एक अलग तरह का कंटेंट होगा. और जैसे अब हम लोग फिल्म के बारे में सोचते हैं तो हमें मालूम होता है कि जब आप थिएटर में जाके फिल्म देखेंगे तो अंधेरा होगा, आप सब कुछ बड़ा बड़ा देखेंगे, आप एक वाइड शॉट काफी देर तक लगा सकते हैं, उसमें कोई अगर इंटरेस्टिंग चीज हो रही है जो जरूरी है कहानी के लिए, आप एक वाइड शॉट में दिखा सकते हो. टेलीविजन में हमें बताया जाता था कि हर चीज को हाईलाइट करो, वरना लोग नहीं देखेंगे, नहीं समझ पाएंगे. सो आई थिंक द स्क्रीन साइज विल continue to play a defining role in the separation of stories on medium. Thanks. Thank you. Beautifully said, and on that note, I think we can perfectly summarize जो भी आप लोगों ने कहा है, that while creativity will go platform agnostic, theatre हो, OTT हो, television की हमने बात नहीं किया, but equally powerful as a medium, the creativity of the artists will continue getting the satisfaction, plus box office उतना मैटर नहीं करने लगेगा, क्योंकि अब हमें केमिस्ट को ये कहना है कि आप अपना काम करिए और एक्टर्स अपना काम करेंगे. बट ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच पंकज, सोनाक्षी, इम्तियाज फॉर टेकिंग आउट द टाइम टू डू दिस फॉर OTT Play. Thank you very much, Sonal, and you speak so well. Thank you so much. How's